Yes, good morning everyone. We are going to start with today's lecture. We are going to continue with the chapter which we started yesterday, the last unit, complex analysis. And in yesterday's lecture, we had a brief introduction about the complex numbers and their few properties which most of us already are familiar with. So we discussed polar form of complex number. So it was z is equal to r cos theta plus I sin theta. So we had r basically it's always square root of x square plus y square. So that is modulus of z, and theta is known as argument of z, and there is a particular value of theta which satisfies this relationship. Then that theta particularly is known as capital argument z, which is the principal argument. So yesterday we saw in the questions how to express a given complex number in its polar form. So we can very easily find r and then we can find theta. So if theta happens to be in this range, so the same theta goes as principal argument. So now I'm going to give you another formula. So we are going to continue from here. So there is this Euler's formula, which is, so this is now going to be a connection between the polar form and the exponential form. So the trigonometric functions cos and sine are connected with exponential in with this formula. So this formula name is Euler's formula given by Euler's, but that's how it is. E raised to power I theta is cos theta plus I sine theta. Now you can verify this. Means otherwise we are not going to do proof of this or derivation of this, but using series expansion you can verify, right? So what is the, I'm just going to give you a hint. What was the series of sin x? Infinite series, right? If you remember that. So this was the series of sin x, and we know this was the infinite series of cos x. 1 minus x square by 2 factorial plus x raised to power 4 by 4 factorial. And now you, so it's just x, but you can write theta because theta is also a real number. It's expressed in radians. So now you can see that if I multiply this with iota, so this whole series is going to be multiplied with I and then add them. So you will get cos x plus I sin x, right? So cos x plus I sin x, what it will be? So it will be 1 plus ix. So now all the powers will be there, odd as well as an even one, because you'll add them. So 1 plus ix minus x square by 2 factorial minus I x cube by 3 factorial plus x raised to power 4 by 4 factorial and so on. And this, if you look at carefully, this becomes 1 plus ix plus ix ka square by 2 factorial, because it's minus x square. Iota is not there. So, but actually it's iota square. So we know iota square is minus 1. So this negative gets adjusted. That's why I've written plus here. And the next term will be iota x cube, because iota cube we know is minus iota, right? Because iota square becomes minus 1 and 1 I is left, so it's minus. So this negative is also adjusted. And the next term is iota x raised to power 4 by 4 factorial, because this is plus 1, because we know that iota raised to power 4 is 1, and so on. So if you look at this one now, so this is the series expansion of e raised to power x. Just x is being replaced with iota x, so that this gives you a validation of this formula. So I've just given you the brief idea how you can verify that this is right. So you can use this formula by for conversion to polar form to exponential form. So there is no much difference. It is just a convenient way of writing that this cos theta plus iota sin theta, this completely we simply write as e raised to power iota theta. So this one z is equal to r e raised to power iota theta is known as exponential form of a complex number.
right? So how do we derive exponential form from the polar form? By using this Euler's formula. R and theta are still having the same meaning. R is the modulus, theta is the argument. It is just a way of writing, because you will find. Yes, Pranshu, you can raise your hand, then I can take your question if you have any doubt. Yes, you मैम can. ये आपने आयोटा साइन थीटा वगैरह ये क्या किया इधर? I was giving you the proof of this, that we know the infinite series for cos, we know the हाँ series जी। expansion of sine. तो वो series expansion से मैंने आपको ये formula का proof दिया है. This has another proof also, but right now we are not going to do the proofs. But आपको याद रहता है इस तरीके से कि आपको कभी formula भूल भी जाए, वैसे it's very easy, but still you can always figure it out that it's everything is being derivable from the infinite series expansion. ये टेलर सीरीज से? हाँ, जो उनकी मैक्लॉरिन सीरीज स्टैंडर्ड हमें ठीक है याद है, ठीक है ठीक है उनसे ठीक है हमने मैम। ये किया है. Okay, this is ठीक not है मैम। required actually, something just additional. Okay, so yeah, what I was telling, this is the exponential form of a complex number. So now you just can have some example. Say we want to find exponential form of this number 1 plus I. So we know R is square root 2. Very easily you can find, and theta will be, I think we did this example yesterday. Theta is pi by 4. So the polar form will be square root 2 cos pi by 4 plus I sin pi by 4. This is the polar form, and exponential form will be this one. So this is very easy. It is, and capital ARG principal argument is pi by 4. So you can have many examples of the same kind in which you are supposed to find the polar form. You are supposed to express the given complex number into polar form or the exponential form. So we can have another example. So we know R is mod Z, which is 2, and theta will be pi by 3 in this 3. case, you can figure out. So Z will be 2 e raised to power iota pi by 3. It is just, it's convenient to write in this form, and we can use it wherever it will be required. अभी हम इनका यूजेज नहीं कर रहे हैं कि इनका यूज हम कहाँ करेंगे, वो क्वेश्चंस करेंगे हम लास्ट में. ये चैप्टर के लास्ट में वी हैव सर्टेन काइंड ऑफ क्वेश्चंस, उनमें ये सब यूज होगा, तो वहां पे आप डायरेक्टली इन चीजों को यूज कर सकते हो, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स. ये बिल्कुल एलिमेंट्री चीजें हैं, ये हमारा हो गया है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द kind of next part of the same chapter, which is function of a complex variable. अब हम एक्चुअल में कैलकुलस इसमें ऐड करेंगे. कैलकुलस ऑब्वियसली स्टार्ट्स फ्रॉम फंक्शन, देन लिमिट, then continuity, differentiability, and particularly we have something more than differentiability in this chapter, analytic function. So हम function define करेंगे, फिर limit के questions करेंगे, फिर हम continuity देखेंगे, उसके बाद as you know the order, differentiability, and after differentiability we have one more thing additional for complex functions, analytic functions, or analyticity we can call it. So this will be the hierarchy, and then finally एक particular type of questions करेंगे जिसमें हमें period find करना है और equations को solve करना है. जैसे आप नॉर्मली कार्टेशियन में इक्वेशंस दे दिया जाए, ओके सॉल्व x स्क्वायर प्लस 4x plus 4 is equal to 0. Say okay, let's just this one. So you are given the question like algebraic equations and you need to solve them. So you are supposed to find the values of x. So ऐसे ही हमें z में equations मिलेंगी. तो this is going to be the last part. और periods find करने होंगे, बिकॉज आपको पता है कि पोलर फॉर्म के साथ every complex number is connected with cosine and sine, and cos and sine both are periodic functions. So वहां से पीरियड का कॉन्सेप्ट आएगा, बट दैट पार्ट इज अ लेटर ऑन. पहले हम ये हायरार्की जो है पूरा करेंगे. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन. सो ऑल ऑफ अस आर ऑलरेडी क्लियर विद फंक्शन की वही डेफिनेशन है जो हमें ऑलरेडी पता है, दैट देयर इज अ डोमेन, देयर इज अ रेंज, right? So there is a domain and then there is a range, or particularly codomain आप उसको बोल सकते हो, जो आपकी set of बड़ा set भी हो सकता है. And then for every number in domain there is a
element associated with it. If this is your domain, this is your range. So we know that every number, in whatever number in the domain has, every number has a image. So that is the definition of function. So I'm not going to write that formally. You're already clear with the concept. So function of complex variable will be like fz. So w is equal to fz, where z is a complex number. So complex number we know looks like x plus iy, and we know that x and y are real numbers. So x, y are real, उनको यूज करके कॉम्प्लेक्स नंबर बना z, और फिर z का आगे क्या है, फंक्शन है fz. सो उसको हम w से स्टैंडर्ड नोटेशन डिनोट कर सकते हैं. सो दिस इज द नोटेशन फॉर फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. ऑब्वियसली अब वो वेरिएबल हो गया बिकॉज z कैन हैव मेनी वैल्यूज, उसकी डोमेन होगी कुछ, उसके अकॉर्डिंग w विल हैव वैल्यूज. सो यू कैन हैव एग्जांपल, से w is equal to mod z. Let's take the simple example, w is mod z. So we know that if z is uh, x plus iy, so what is mod z? Square root of x square plus y square. So that's a function, right? कुछ भी आप फंक्शन मतलब z के ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगा रहे हो, इनफैक्ट ऑपरेशन नहीं भी लगा रहे हो, इवन इफ यू राइट w is z, so that is like a identity function कि z का इमेज z ही है, उसके ऊपर हम कोई ऑपरेशन लगा ही नहीं रहे हैं, ना उसका स्क्वायर कर रहे हैं, ना उसका मॉड ले रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं. सो ये डिफॉल्ट जो ट्रिवियल फंक्शंस की कैटेगरी में आता है, आइडेंटिटी फंक्शन, दैट इज आल्सो अ फंक्शन. जैसे हम बोलते हैं x गोज टू x, जो y इज इक्वल टू x है, वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है कि जो x होगा उसकी इमेज वही सेम पॉइंट होगा. Same is here, so you can also have identity functions here. So this is the modulus function. And then few more examples. Say let me take z bar. So जो z bar हमने कल पढ़ा था, what is that? Conjugate. Conjugate of complex conjugate. So this is x minus iy. So this is also a kind of a function. So what this function is doing, ये हर एक पॉइंट को उसके कंजुगेट पे मैप कर रहा है. सो x कॉमा y को ये x कॉमा माइनस y पे मैप कर रहा है. सो इफ यू राइट fz इज x माइनस iy, so f of 1 plus 2i will be 1 minus 2i. so this is easy to evaluate. जो भी फंक्शन होगा आप अप्लाई करो और निकाल सकते वैल्यूज. एंड देन यू कैन हैव अनदर एग्जांपल, से w is z square. So w is z square means, so z की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करोगे x plus iy square. Now you can notice one thing which I am doing in every question or whenever I have defining a function, मैं z की हमेशा रिप्लेसमेंट कर रही हूँ x y में, x plus iota y में, because ultimately it's something like chain rule, right? कि z is also a kind of a function of x and y. Z is expressed in a particular form, it's a number, but it's dependent on x and y. x and y change होंगे तो z change होगा, और z change होगा तो w change होगा. So it's the similar thing happening, just like function of partial जो हमने function of more than one variable किया था. So the similar concepts will arise. So that is why आप इसको ठीक है, आपने बोला this is a function, but now I am elaborating it, I am simplifying it to one more step by substituting z is equal to x plus iy, because you will see this, we will require this step to do in every question, limit, continuity, differentiability में हमें ये करना ही है. So now you open this up, you open up the square, so you will get x square minus y square plus 2 iota xy. So I can write this x square minus y square plus iota 2xy. Okay, and we can have few more example. Say okay, one example is this, और एक example हमने ये किया था. Now you can have an idea from here that how this fz looks like. Just like z is having one real part and one imaginary part, x and y, its function w is equal to fz is also having one real part and one imaginary part. Because the presence of I in your z will somewhere
will make the I present somewhere in the function also. So उससे आप हमेशा clearly separate कर सकते हो कि real part कौन सा है और imaginary part कौन सा है. So your function of complex variable will also be having this structure. Some function plus iota times some another function. So जैसे आप ये वाले example pick करोगे तो इसमें u तो आया x और v आया -y. ये तो आपका z की वैल्यू थी ना ओरिजिनल, वो तो है. बट fz में इमेजिनरी और रियल पार्ट क्या है, तो उनके इमेजिनरी और रियल पार्ट्स की हम नोटेशन है u और v. u इज द रियल पार्ट ऑफ fz and v is the imaginary part of fz. So this is a standard notation for fz for any function. So u is x and v is -y, and what is here, u is x square minus y square and v is 2xy. Right? I hope that is clear. It's very easy to see. अब जब भी z की वैल्यू डालोगे हमेशा आपके फंक्शन के दो पार्ट्स बन जाएंगे, रियल और इमेजिनरी, एंड यू कैन फिगर आउट क्लियरली टू फंक्शंस u एंड v एंड राइट देम लाइक दैट. और ये वाली जो पहले एग्जांपल किया था हमने, तो इसमें u क्या है? यस, व्हाट इज u हियर? ये वाला फंक्शन में w इज मॉड z में what is the value of u and v? You can write your answers. U square plus Yes, u means ये actually इसमें imaginary part है ही नहीं है, so it's basically I times 0. तो ये real ही function है. mod z हमें पता है मॉडुलस जो होता है वो एक रियल क्वांटिटी होती है, तो उसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है. सो इसका u जो है वो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट और v इसका है 0. सिमिलरली जो ये आइडेंटिटी फंक्शन है उसमें u है x, v है y, because z is just x plus iy. So whatever, I'm just giving you examples to tell you that at the end of the day, for every function defined, you will have one u and one v. So we will have the general notation, u is like this, v is like this, because if you take care, if you pay attention, so you will see that both u and v happens to be functions of both the variables x and y in general. पर्टिकुलरली किसी एग्जांपल में जैसे ये सिर्फ x का फंक्शन है, ये सिर्फ y का फंक्शन है, यहाँ पे v था ही नहीं, 0 है, तो वो पर्टिकुलर ऑब्वियसली सब कुछ उसी में कवर हो गया. बट इन जनरल दिस इज गोइंग टू हैपन. सो वी हैव that if z is x plus iy, then fz is u plus iv, but u better, u and v are not numbers, they are functions. They are functions of two variables. तो यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट वही मल्टी वेरिएबल कैलकुलस वाले इंट्रोड्यूस हो जाएंगे, because now you will be dealing with function of more than one variable, u and v. Right? So इसको ऐसे भी लिखा जाता है, u as a function of xy plus iota v as a function of xy. So these both are functions of x and y. So this is all about the definition. Means आपको u और v जो है आइडेंटिफाई आपने कर लिए. अब हम कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल्स कर सकते हैं. जैसे रियल में होता है वैसे यहाँ पे भी हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं. So polynomial functions will be like, there is some constant term and then a1z, a2z square. So polynomial, everybody is clear with the polynomial. So the highest power, all the powers of z of your underlying unknown variable are positive integers. It can't be fractional powers in polynomial. So, and there is some degree associated with the polynomial. So this is a polynomial of degree n. So I'm just recalling you, बिकॉज अभी हम स्टैंडर्ड में आपको बताऊंगी कि जो पॉलिनोमियल फंक्शंस होते हैं वो हमेशा कंटिन्यूस होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे हर पॉइंट पे, तो उनकी डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी हम चेक नहीं करेंगे. जैसे हमारे पास हमेशा हम बोलते हैं कि वट एवर पॉलिनोमियल फंक्शन यू हैव, जो हम रियल वेरिएबल्स में भी फंक्शन करते हैं, सो वी ऑलवेज से पॉलिनोमियल इज बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल, नो नीड टू चेक दैट. सो सिमिलरली यहाँ पे भी हम वो कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे. मीन्स इन सबके प्रूफ्स हैं, बट वी आर नॉट doing the proofs, so rather just using the result. And similarly we have the concept of rational function. So rational function क्या होता है? Another polynomial divided by another polynomial. So obviously the denominator has to be non-zero. ये तो मैथ्स का फंडामेंटल रूल है. जब भी आप कोई चीज डिवीजन में डिफाइन करते हो, so you always have to write that this is existing provided the denominator is non-zero. So both pz and
QZ are polynomials. So इस तरह के functions को हम rational functions बोलते हैं. So you can have example like f of z is z square plus z plus 1. This is also a polynomial. And f of z is z square plus z by z cube plus 4z square minus z plus 1, right? So this is an example of how a rational function looks like, right? So this is about just the definition of the function and few examples. So we are done with this. क्योंकि as such हमें functions का जो basic questions हैं, find the domain, find the range, उस तरह के questions हम नहीं कर रहे हैं. They are not part of your course. Directly हम functions को बस हमें define करना आना चाहिए और वहां से u और v separate करना आना चाहिए, which I just shown you. So next we are moving towards this limit. अब हमें लिमिट कैसे निकालनी है यहाँ पे, बिकॉज लिमिट निकालना सीखेंगे उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाएंगे, राइट? सो नाउ वी आर डूइंग फ्यू क्वेश्चंस. लिमिट ऑफ अ फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल. अगेन the meaning of limit, everything, notations, all of them are same. It is just जो आपका underlying variable है वो एक complex variable है. So in general it will be like this thing, that you will be given some function and you will be given some point where z will be approaching. So z is approaching towards z naught. Z naught is also happens to be obviously some given complex number, and some function will be given to you, and so you are supposed to find the value of this limit, right? So now let's do a few examples with which will make you clear that how to find the limits. रूल्स वही हैं जो आप रियल वेरिएबल्स के लिए यूज करते हो. सो लेट्स डू फर्स्ट एग्जांपल. ये मैंने जैसे आपको बोला था कि हम ट्यूट शीट के क्वेश्चंस भी कवर कर लेंगे, सो दैट आपको ट्यूटोरियल शीट के लिए अलग से कुछ नहीं करना पड़े, बिकॉज वी वोंट बी हैविंग अ सेपरेट ट्यूटोरियल. सो दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आई एम डूइंग आर फ्रॉम ट्यूटोरियल शीट्स. लिमिट z टेंड्स टू I z square plus 2. So can you find the value of this limit? कुछ एडिशनल साइंस मैथ्स नहीं लगना है इसमें, आपको बस जो लिमिट का फॉर्मूला पता है कैसे लिमिट निकालते हैं, दैट यू हैव टू यूज, राइट? इट्स इजी. सबसे पहला लिमिट निकालने का मेथड क्या होता है? डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दो, राइट? सो z को हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे? I. So I square plus 2, we know that is -1. So -1 plus 2 is 1. So this was very easy. And now you can find limit z going to 2 plus I z square plus 2. तो ये z approaches to 2 plus आइटा है और आपका फंक्शन है z square plus 2. तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो डायरेक्टली हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे z को 2 plus आइटा का होल स्क्वायर. अच्छा, मैंने सेम फंक्शन ले लिया. यू कैन चेंज द फंक्शन, लेट्स नॉट डू दैट. सो इट्स सिंपली 2 plus आइटा square. So that is 4 plus, that is 4 plus iota square plus 4 iota. So that is 3 plus 4 iota. So ये दोनों functions में हमने क्या किया? Directly just substitute कर दिया and we got the answer. Let's do more example. Limit z tending to, z tending to 1 plus iota z plus 1 by z minus 1. So this is a kind of a rational function. तो पहला step तो वही है कि हम directly substitute करेंगे. So 1 plus iota plus 1, 1 plus iota minus 1. So this gives me 2 plus iota by iota. So further I can write this like 1 minus 2 iota, because iota by iota will be 1 and 2 by iota will be minus iota into 2. Everybody knows that, right? 1 by iota is minus iota because it's a usual convention. हम denominator में complex numbers नहीं छोड़ते हैं. Denominator में we get rid of iota by rationalizing. जब भी 1 by iota है, so that can be obviously replaced with minus iota, because हमें पता है iota square minus 1 होता है. So you can use. So this is the answer of that 1 minus 2 iota, right? And let's do more example. ये बहुत easy है इसलिए I'm taking up them very quickly. Say 1 plus iota
3x प्लस आयोटा 4y। तो इसमें जो आपको फंक्शन है ये z की फॉर्म में नहीं गिवन है, x और y की फॉर्म में गिवन है। तो यहां से जो z का ये जो z नॉट है जिसको अप्रोच कर रहा है, वहां से हमें x और y सेपरेट करना पड़ेगा, बिकॉज जो फंक्शन है वो x और y की फॉर्म में गिवन है। सो आपको इंडिविजुअली x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। सो बेसिकली इट्स लाइक x गोइंग टू 1, y गोइंग टू 1। मैंने यहां से सेपरेट कर लिया x और y। So now you can do that. Individually for x you will be substituting 1, for y you will be substituting 1. So it's basically 3 plus 4 iota. So I'm just giving you different kind of questions so that you can have an idea that what kind of questions can be there. And this is also one question in tutorial sheet, iz square by z minus 1 का स्क्वायर। अब ये z टेंडिंग टू इंफिनिटी है, तो इंफिनिटी पे लिमिट्स हमें पता है, हमेशा हम डिवाइड कर देते हैं। तो अब z स्क्वायर से डिवाइड करोगे, सो यू विल गेट 1 plus 1 by z square minus 2 by z. So this will make it, answer is iota by 1. So that is iota. So that is the answer. So these are the questions जो बहुत simple हैं, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करके आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। whatever it turns out to be, it can be a real number also, it can be a complex number also. Whatever answer you're getting, that is the answer. So now let's do one more example. Limit z tending to 0, z by z bar. So limit z tending to 0. अब हमें z पता है क्या है, चलो आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करो। अब हम वही टेक्निक यूज करते हैं, लेट्स सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली। सो व्हेन यू विल बी सब्स्टिट्यूटिंग डायरेक्टली, व्हाट यू आर गेटिंग, 0 by 0, राइट? क्योंकि z 0 है तो z बार भी 0 होगा, क्योंकि z 0 का मतलब है x और y 0, और उसका कंजुगेट में भी x और y दोनों 0 आ जाएंगे। या ओके, e पार्ट वन मोर टाइम आई हैव टू एक्सप्लेन, लेट मी गो टू e पार्ट। या e पार्ट में क्या था, लिमिट z टेंडिंग टू इंफिनिटी था, आइटा z स्क्वायर बाय z माइनस 1 का स्क्वायर था। तो व्हेन यू ओपन दिस अप, स्क्वायर z स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2z, तो अब z स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे। सो आई 1 plus 1 by z square minus 2z by z square. तो ये 1 by z ये 0 चला जाएगा, because z is going to infinity and you will be left with only iota. I hope that is clear now. And now we can go ahead to this question. So अब इस question में क्या है, as I told you, 0 by 0 form. So when this turns out to be 0 by 0 form, so यहाँ पे भी you won't be using L'Hopital rule, like just like in the function of two variable. जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जब हमारे पास function of two variables थे, you can't use L'Hopital rule because that's not allowed, means it's not, it does not exist for function of two variables. So here also z is like a function of two variables x and y, so there is no point of using L'Hopital rule here. So the question is how you are going to evaluate this limit. So it's the same thing which we discussed in that chapter, which I am going to explain again very quickly. अब z tending to 0 का मतलब क्या है, अगर आप इसको एक्स वाई की फॉर्म में स्प्लिट करो, सो दिस एक्स वाई गोज टू 0 0, बिकॉज अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0. 0 means both individually x and y are going towards 0, means you are actually approaching towards this point origin, and z is somewhere here in the plane as a ordered pair, it is x comma y. So you want to approach towards this point. So यहाँ पे भी आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट्स वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे भी infinitely many ways हैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के. So there are infinitely many paths by which you can approach this towards 0. आप ऐसे भी आ सकते हो, आप ऐसे भी आ सकते हो, आप कैसे भी आ सकते हो. There is, there are infinitely many kind of curves and paths which exist through which you can approach this point. तो वहां पे हमने आर्गुमेंट क्या दिया था कि हम टू पाथ टेस्ट यूज करते हैं उस केस में, बिकॉज द टू पाथ टेस्ट टेल्स यू कि अगर आपको कोई भी दो पाथ ऐसे मिल गई जिसके अलोंग अलग अलग आंसर आ रहा है, सो इन दैट केस लिमिट इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट. यहाँ पे भी एग्जैक्टली वैसे ही चलेगा. तो टू पाथ टेस्ट लगाने के लिए हम x और y की फॉर्म में चले जाएंगे. सो दिस इज x प्लस आई वाई
दिस इज x माइनस आई वाई. सो अब जब आपने x और y की फॉर्म में लिख लिया है तो अब z टेंडिंग टू 0 को भी हम x टेंडिंग टू 0 और y टेंडिंग टू 0 लिखेंगे, राइट? अब ये किस तरह का फंक्शन है? इफ यू रिमेंबर होमोजीनियस, x और y की पावर सेम है. अब ये वैसा ही है फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल जैसा, बस इसमें बस एक आयोटा जो है वो एक्स्ट्रा है. सो यहाँ पे हम पाथ अगर चूज करें y is equal to mx, because unki power same है, as you can see 1 1 1 1. So if I choose this path and then I substitute x plus iota mx, x minus iota mx, so what answer I am going to get? x x तो cancel हो जाएगा, so this is dependent on m, so clearly the limit does not exist. सो यहाँ पे भी वही लॉजिक है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करनी होगी फिर यही वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे कि डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन से ही आपके पास आंसर आ जाएगा. बट अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से यू आर गेटिंग समथिंग लाइक नॉट एग्जिस्टिंग, इनडिटर्मिनेट, इंफिनिटी आ जाए, दैट इज एन आंसर, राइट? इंफिनिटी इज एन आंसर. बट इफ यू आर गेटिंग इनडिटर्मिनेट फॉर्म और डज नॉट एग्जिस्ट, देन तो आप पाथ टेस्ट से ही वो क्वेश्चन करोगे. यहाँ पे एक्सप्लिसिटली इस चैप्टर में मेंशन्ड नहीं मिलेगा आपको, बट एक्चुअली दिस इज द सेम थिंग, पाथ टेस्ट, कि आपको एक पाथ चूज करना है और उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. अब वो पाथ वैसे ही है, पाथ चूज करने का तरीका उनकी पावर्स को देख के. अगर कोई ऐसा फंक्शन होता से x प्लस आई वाई स्क्वायर, x माइनस आई वाई स्क्वायर, तब आप पाथ चूज कर लेते x इज इक्वल टू एम वाई स्क्वायर, बिकॉज you see the relation between the powers. So if you know that already, जैसे उस चैप्टर में किया था, so it's exactly on the same way. So ये क्वेश्चन का आंसर है limit does not exist. I hope it's clear to everyone. तो इस तरह से और भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको, वैसे ही आपको पाथ टेस्ट से करने हैं and you will get the answer. तो that is all about limits. If anybody has any doubt, then please ask. क्योंकि then I will move forward towards the next. मैम Yes. मैम जो हमारा डायरेक्शन डेरिवेटिव का चैप्टर है उसके अंदर हमें लिखा आएगा पार्ट टेस्ट के लिए अगर करना हो? नहीं, उसमें भी लिखा नहीं आएगा, बट उसमें भी आपको देखो पता ही है ना, मतलब मैंने आपको बताया ही था कि एग्जिस्टिंग प्रूव करने वाले क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है. वो स्टेटमेंट वही आएगी, चेक वेदर द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट. तो आपको यही तरीका है उसमें भी कि पहले आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ट्राई करना है, अगर उससे एग्जिस्ट कर गई तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है कि पाथ टेस्ट से ही आना है, और आपको इवन आंसर भी पता है कि पाथ टेस्ट यूज ही नॉन एग्जिस्टेंस के लिए होता है. पाथ टेस्ट से कभी भी हम एग्जिस्टेंस इंप्लाई कर ही नहीं सकते हैं. सो इनडायरेक्टली अगर आप इस सब चीजों को कनेक्ट करो तो बेसिकली एवरी क्वेश्चन इज लाइक कि आपको पता ही है पाथ टेस्ट से ही होगा, अगर डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आंसर नहीं आ रहा है तो. सेम इज हियर, एग्जैक्टली सेम इज हियर, बिकॉज हियर ऑल्सो इट्स काइंड ऑफ अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, बट जस्ट आयोटा उसमें एडिशनल प्रेजेंट है, बट the similar things are used because you can see ना, क्योंकि इसको हमने जब ऑर्डर्ड पेयर रिप्रेजेंट किया था तो वो एज अ ऑर्डर्ड पेयर बिहेव एग्जैक्टली सिमिलर बिहेव करता है इसका मैथमेटिक्स, जैसे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स का करता है. ओके मैम. yes, because m can have infinitely many values. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, जैसे हमने किया था पाथ टेस्ट में क्या होता है कि आपको कोई भी दो पाथ अगर ऐसे मिल गए जिसके अलॉन्ग लिमिट की आंसर अलग अलग आ रही है, तो ऑब्वियसली लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज लिमिट एग्जिस्टेंस के लिए इनफाइनेटली मेनी पाथ्स के अलॉन्ग सेम आंसर होना चाहिए. अब कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जो थ्योरेटिकली प्रूव कर सके कि इनफाइनेटली मेनी पाथ्स के अलॉन्ग आंसर सेम आ रहा है. There are techniques, but they use some really advanced analysis and mathematics. वो तरीके अलग हैं, ऐसा नहीं कि कर नहीं सकते, but it's not in our range. वो हमारे सिलेबस में, हमारी रेंज में नहीं है. तो हमें यही क्वेश्चन आएगा कि नॉन एग्जिस्टेंट प्रूव करो, लिखा नहीं होगा, बट एज आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू वो नॉन एग्जिस्टेंट ही आएगा. बट आपको पाथ अब वैसा चूज करना है जिससे वो प्रूव हो जाए कि एक्चुअली इट डज नॉट एग्जिस्ट. तो पाथ चूज करने के लिए हम हमेशा y is equal to mx, because most of the times your z is approaching towards 0. So 0 से पास करने वाली यही कर्व्स होती हैं, y is equal to mx, y is equal to mx square, उनकी पावर्स हो सकती हैं. So by looking at their powers you decide your path. अब ये लास्ट में
x या y जो भी है कैंसिल हो जाएगा. सो यू गेट टू सी फ्रॉम हियर इट्स डिपेंडेंट ऑन m. अब मुझे m की कोई दो अलग वैल्यूज दो. अगर मैं m को 0 डाल देती हूँ, से चलो 0 नहीं डालते हैं बिकॉज वो मीनिंगलेस हो जाएगा. से m को 1 डालते हैं, सो द आंसर यू आर गेटिंग इज 1 प्लस आई बाई 1 माइनस आई. और m को अगर 2 डालते हैं, सो द 1 आंसर plus यू आर 2 गेटिंग इज alpha. अ डिफरेंट. सो क्योंकि अब m तो कुछ भी हो सकता है ना, ये तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है, देयर आर इनफाइनाइटली Yes, मेनी ma'am. लाइंस passing through region. So since m can have infinitely many values, therefore आपको तो बस दो ही दिखानी है. तो अगर आप या तो वर्डिंग में लिख दो या ऐसे करके दिखा दो कि मैंने m की दो अलग अलग वैल्यूज चूज की हैं, शो कर दिया कि आंसर डिफरेंट है. सो जस्ट राइट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. Okay, ma'am. Right, so I hope that is clear now. So next we are moving towards continuity. अब continuity में भी वही है, because if you remember continuity की जो definition थी, when do we say a function is continuous? So a function fz is Limit exist करती है. said to be continuous. Yes, Uday, you have a doubt? यस मैम. मैम ये जो एल हॉस्पिटल रूल है मैम, ये 2 वेरिएबल पे नहीं लगता कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे नहीं लगता? नहीं, मैंने आपको 2 वेरिएबल्स में भी बताया था कि वहां पे नहीं लगता है, क्योंकि एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि जब 0 बाय 0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बनती है हमारी लिमिट्स में, तब हम ऊपर भी डेरिवेटिव कर देते हैं और नीचे भी डेरिवेटिव कर देते हैं. बट वो डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक ही वेरिएबल होता है. अब जब 2 वेरिएबल्स में चले जाते हो तो डेरिवेटिव का वहां सेंस नहीं होता है. 2 वेरिएबल्स में वहां पार्शियल डेरिवेटिव्स होते हैं. Partial derivative. So that's why it's not directly generalized. There is no direct generalization of L'Hopital rule which exists for from one variable to two variable. और ये जो complex में आप हो, so ये जो complex हम पढ़ रहे हैं, ये भी if you look at here, so z is actually a function of two variables. तो similar logic से आप समझ सकते हो, यहाँ पे भी complex में भी L'Hopital rule का direct generalization नहीं exist करता है. So that is why. हम x और y को 2 वेरिएबल करके ले रहे हैं, पर अगर हम सिर्फ z टेंडिंग टू 0 करें तो ये तो 1 वेरिएबल ही हो गया. हाँ, z टेंडिंग टू 1 वेरिएबल, बट आई एम कमिंग टू दैट ना. अब देखो जब हम आगे जाएंगे, अभी हम लिमिट पे हैं. जब आपको डिफरेंशिएबिलिटी का यहाँ कॉन्सेप्ट, यहाँ डिफरेंशिएबिलिटी का नोशन बहुत अलग है. यहाँ पे आप मुझे बताओ z बार का डेरिवेटिव क्या होगा. फिर आप मुझे z का ही डेरिवेटिव बता दो. आप कर दोगे 1 विद रिस्पेक्ट टू z सपोज, और z बार का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 ही करेंगे मैम. वो आपको कैसे पता? वही पता नहीं ना मैम, अगर हम अभी इस टाइम करना चाहें. नहीं, आप चलो सपोज मान भी लिया, इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगा दिया, तो आपने ऊपर डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू z. z का तो आपने 1 कर दिया. z बार का क्या डेरिवेटिव है? ऐसे कॉम्प्लेक्स में फॉर्मूला नहीं एग्जिस्ट करते जैसे रियल वेरिएबल्स में है, बिकॉज वो फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल है. तो अभी आपको पता चलेगा ये 2 वेरिएबल्स में, जैसे 2 वेरिएबल्स में भी जब हमने डेरिवेटिव्स पढ़े हैं तो हमने पार्शियल डेरिवेटिव्स पढ़े हैं. पार्शियल मींस एक टाइम पे एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू वेरिएशन हो रहा है, दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू नहीं. सो इफ आई जस्ट आस्क यू, मैं आपको कोई फंक्शन दे दूं से x square plus y square, and I ask you what is the derivative of this function. So can you give me an answer? What is the derivative of this function? पार्शियल डेरिवेटिव बता. पार्शियल So डेरिवेटिव you will ask me कि my question is incorrect. I should be asking, okay, either you give me a direction. There is a directional derivative concept कि इस particular direction में इस point पे क्या है derivative उसका rate of change, or you tell me the with respect to x के with respect to y, because there is no general theory कि जो आपको एक absolute derivative बता दे. उसको हम direction specific, path specific ही बता सकते हैं. सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में भी है, बिकॉज ये आप प्लेन में हो तो आपको रेट ऑफ चेंज यहाँ पे भी देखने होंगे, तो वो पाथ के लॉन्ग होंगे और एक टाइम पे आप एक के विद रिस्पेक्ट टू देख सकते हो एंड नहीं. बट यू विल सी दैट जब हम डिफरेंशिएबिलिटी पे जाएंगे कि रियल वेरिएबल वाला डायरेक्ट जनरलाइजेशन नहीं है. सो अगेन टू टेल यू, सो देयर इज नो, डोंट अप्लाई एल हॉस्पिटल रूल इवन इफ यू विल बी ट्राइंग टू अप्लाई. अब मान लो ये गिवन नहीं होता आपको, सीधा मैं आपको कोई और फंक्शन दे दूं, ओके से कुछ भी दे दूं, एक्स क्यूब प्लस आयोटा वाई स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस आयोटा वाई क्यूब, सपोज दिस. अब ये तो इसको मैं बोलूं कि ये नहीं है, इफ आई राइट लाइक दैट, सो ये भी 0 बाय 0 बन रहा है,
सो नाउ व्हाट विल यू डू? अब तो मैंने z भी हाइड कर लिया, सो नाउ यू आर जस्ट लुकिंग एट इट एज अ फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल ओनली, तो आप पाथ से ही कर पाओगे। ऑल्दो ये ठीक है, ये नहीं होगा, ये इसमें होमोजिनिटी नहीं है, यू नीड होमोजीनियस फंक्शन, सो दैट काइंड ऑफ एग्जांपल्स यू विल बी गेटिंग, बट आई होप यू गेट द कॉन्सेप्ट, राइट? कि वो जो डिफरेंशिएबिलिटी का नोशन है ना, जो फन वेरिएबल में होता है, वो 2 वेरिएबल्स में और कॉम्प्लेक्स में उस तरह से नहीं होता है। इट डज Yes, नॉट ma'am. डायरेक्टली गिव यू द रेट ऑफ चेंज। यस मैम। मैम ये जो m की अगर सपोज m से इंडिपेंडेंट आ जाता वो फंक्शन, तो मैम तो हम इनकंक्लूसिव कहते हैं ना, क्योंकि ये तो हमने सिर्फ एक डायरेक्शन के हाँ, तो अबाउट। फिर आप दूसरा पाथ चूज करोगे, क्योंकि आपको अल्टीमेटली पता है कि इसको नॉन एग्जिस्टेंट ही आना है, तब हम कोई और पाथ से ट्राई करेंगे कि y इज इक्वल टू mx से तो आया नहीं, उससे तो लग रहा है, इट अपीयर्स दैट इट एग्जिस्ट, बट देन हम किसी और पाथ से ट्राई करेंगे। बट वो जो मैंने आपको तरीका बताया था डायरेक्टली कि आप x और y की पावर्स देख के डिसाइड करोगे, उससे फिर आप डायरेक्टली उसी पाथ से करोगे ना जिससे आपको पता है कि उससे आ ही जाएगा। यू वोंट वेस्ट योर टाइम, पहले आप y इक्वल टू mx से टेस्ट करोगे, फिर आप दूसरे से टेस्ट करोगे। सो ये वो पाथ मिल ही जाते हैं अगर आप वो रूल फॉलो करो, तो जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। मतलब हमारे सिलेबस में ऐसा कोई नहीं है जिसमें लिमिट एग्जिस्ट करती हो? वो बेटा फिर वो ही है, वो ये ही मिलेंगे जिसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन से आ जाएगा। ओके मैम। राइट, तो इट्स काइंड ऑफ आप लिमिटेशन ही कह सकते हैं, बिकॉज हम वो ये एक्चुअली मेन जो चैप्टर है, ये सब इज कैलकुलस इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर सब्जेक्ट रियल एनालिसिस, और हम तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ रहे हैं विच इटसेल्फ इज अ वेरी सेपरेट सब्जेक्ट। हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा है पूरे 1 साल में, ये इतना डिटेल्ड है, तो आपको बहुत ही इंट्रोडक्टरी है, इसलिए सो वेरी फ्यू काइंड ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, राइट? Okay, so let me let me come back to this continuity. So function हमें पता है continuous कब होता है, it's the same thing. So continuous at a point z is equal to z naught, तो पहले तो उस point को domain में होना चाहिए, so z is equal to z naught should be in the domain, or you can say function should be defined there. ये तो होता ही बाय डिफॉल्ट, हमें फंक्शंस गिवन होंगे वहीं से पता चल जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या होती है कि ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करनी चाहिए, और तीसरी कंडीशन क्या होती है, ये जो लिमिट एग्जिस्ट करी है क्योंकि फंक्शन उस पॉइंट पे डिफाइंड भी है, तो फंक्शन की वैल्यू के साथ मैच करनी चाहिए, राइट? तो ये डिफॉल्ट होगा, इस कंडीशन तक हम पहुंचेंगे ही नहीं, बिकॉज क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है ये क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, तो जो कंटिन्यूटी वाले क्वेश्चन होंगे वो भी ऐसे ही होंगे कि लिमिट अगर ये ही नहीं एग्जिस्ट करी, सपोज लिमिट ही नॉट एग्जिस्टिंग आ गई, तो आप ये वाली कंडीशन चेक करोगे ही नहीं, ऑब्वियसली यहाँ पे जाने का मतलब ही नहीं है, ये सेकंड कंडीशन ही फेल हो जाएगी। तो कंटिन्यूटी के भी ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, सो आप उसकी लिमिट निकालोगे, अगर लिमिट तो एग्जिस्टिंग आ गई, मान लो ये वाले क्वेश्चंस हुए, पॉलिनोमियल्स हैं या कुछ और तरीके का फंक्शन है, जैसे यहाँ पे ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और ये फंक्शन आपको वैसा डिफाइंड है कि उसकी वैल्यू भी वही है, सो फिर तो तीनों कंडीशंस वेरीफाई हो जाएंगी, बट वो बहुत ही ट्रिवियल क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस वोंट बी आस्क्ड। Are you getting my point? I'm directly giving you actually ideas about from the questions point of view. So eventually ये continuity के अलग से कोई question नहीं है, इसके question limits वाले ही हैं. So the same logic I gave you in that chapter also. So like इसी question में I can give you a statement that check whether the function, the same function जो अभी हमने किया है z by z bar is continuous at z is equal to 0 or not. तो z is equal to 0 पे, बट ये फंक्शन मुझे ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा, लेट मी डिफाइन इट लाइक दिस, क्योंकि डायरेक्टली तो 0 पे डोमेन में नहीं है ना 0 उसकी, तो 0 पे सपोज मैं इसको कोई वैल्यू दे देती हूँ, लेट्स 0, कुछ भी वैल्यू मैंने उसको दे दिया है, तो अब ये फंक्शन जो है 0 उसकी डोमेन में है क्योंकि 0 पे मैंने सेपरेटली उसको एक वैल्यू दिया है, और अदरवाइज फॉर ऑल नॉन जीरो जेड इट इज डिफाइंड लाइक दिस। तो आपको इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो पहली कंडीशन हो गई कि 0 पे उसकी डोमेन में है, दूसरी कंडीशन आप चेक करोगे लिमिट, तो लिमिट आपको निकालनी जब पड़ेगी ये
तो आप सेम टेक्निक यूज करोगे जो हमने पाथ टेस्ट लगाया है। तो जैसे ही आप पाथ टेस्ट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट z इज इक्वल टू 0, राइट। किसी और पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो सकता है, बट राइट नाउ हम जनरल कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहे हैं हम, क्योंकि लिमिट भी हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालते हैं, तो कंटिन्यूटी की बात भी हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कर रहे हैं इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। यू विल बी गिवन अ स्पेसिफिक पॉइंट एंड देन यू कैन यूज। सो बेसिकली यही क्वेश्चन अल्टीमेटली पाथ टेस्ट वाले क्वेश्चंस पे ही फिट हो जाता है। अभी हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, तो देयर ऑल्सो यू विल गेट टू नो, वहां भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये तो अभी हमने एक एग्जाम्पल किया है, right? So this we are done with the lecture time, and probably most probably we need actually, एक तो हमारा lecture है ये default जो Saturday को है, we need one more lecture. So हम Saturday को 2 hours की class लगा सकते हैं, और if you want हम कल भी extra class रख सकते हैं। So I'll let you know on WhatsApp, and I'll put the information on LMS also, whether there will be your class on tomorrow or on Saturday. बेटा EST के बारे में अभी कोई आइडिया नहीं है, पॉसिबली फेब में ही होंगे, बिकॉज आप खुद ही सोच सकते हो आपके जनवरी तक तो MST ही चलने हैं, तो EST फेब में ही हो सकते हैं। Yes उदय, क्विकली यू कैन आस्क योर डाउट। वैसे हमारा टाइम हो गया, बट यू कैन आस्क। मैम ये जो मैम मतलब कि जो जब भी लिमिट ऑफ 2 वेरिएबल्स के अंदर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन वैसे मैथमेटिक्स में हाँ, कुछ वैसे ना हो कुछ सकता है, वैसे तो एग्जिस्ट करेगा ना कभी हाँ ना कभी। हाँ, ऐसा कोई वो नहीं है, हाँ एग्जिस्ट कर सकता है। मैं वही बता रही हूँ ना, देयर आर वेज। इनफैक्ट आपकी थॉमस एंड फिने में भी कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल्स हैं, वो उस चैप्टर में वो हमने किए नहीं है। वो क्या करते हैं, वो फिर पोलर में कन्वर्ट करके देखते हैं। समटाइम्स पोलर में कन्वर्जन से कुछ फंक्शंस होते हैं, वो पोलर में कन्वर्जन से उनको दिख जाता है, क्योंकि आर एंड थीटा के नोशन से देखते हैं, फिर वो एक्स एंड वाई, क्योंकि वहां पाथ का सेंस बदल जाएगा, फिर पोलर में नजर आ जाता है कि एग्जिस्ट कर रही है। तो देर आर मेनी टेक्निक्स जो, क्योंकि ऑब्वियसली एक टेक्निक से अगर तो प्रूव ही हो गया डज नॉट एग्जिस्ट, फिर तो वो डज नॉट एग्जिस्ट ही है। बट कई बार होता है कि हमें पता ही नहीं है, इनडिटर्मिनेट है जैसे, तो इनडिटर्मिनेट के बाद देर आर फॉर डिफरेंट फंक्शंस देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स एंड एनालिसिस। बट आपके सिलेबस में हम उसी तरह के, एक ही तरह के क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम यही वाले पाथ टेस्ट से प्रूव कर पाते हैं डज नॉट एग्जिस्ट वाला। यस मैम। और मैम जैसे हमने देखा था मैम कि रियल नंबर एक मैम वन डायरेक्शन में, फिर उसके परपेंडिकुलर हम बना देते हैं तो मैम वो कॉम्प्लेक्स बन जाता है। तो मैम ऐसे थर्ड एक्सिस में भी कोई नंबर होते हैं? I didn't get your question. जैसे मैम पहले रियल लाइन होती थी मैम, वो एक्स एक्सिस के जैसे, मैम फिर मैम कॉम्प्लेक्स नंबर उससे परपेंडिकुलर आ गए, आर्गेनियन बन गया ओके, मैम। तो ऐसे थर्ड जेड एक्सिस में भी कोई नंबर्स हैं? नहीं ऐसा कॉम्प्लेक्स इज नॉट परपेंडिकुलर। कॉम्प्लेक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए बेसिकली हमें 2 डायमेंशनल प्लेन ही चाहिए। हाँ, जब उनके सरफेसेस बन जाते हैं, वो फंक्शंस बन जाते हैं, उसके लिए हमें थर्ड एक्सिस जो है चाहिए होगा। आप ये मतलब, तो थर्ड एक्सिस, अब मैं z को ड्रॉ करने के लिए बोलूँ आपको, fz को, जैसे अभी हमने ये fz किया था, कुछ भी था, कहाँ गया, कोई भी fz ले लो। ये अगर आपको इसका ड्रॉ करना है कि ये z स्क्वायर कैसा नजर आएगा, फिर आप थर्ड एक्सिस यूज करोगे ही करोगे ना, क्योंकि डोमेन ही आपका प्लेन है। डोमेन इज 2 डायमेंशनल प्लेन, सो थर्ड एक्सिस में इसकी इमेज ड्रॉ होगी, right? But there is no, a complex number is the largest possible algebraic structure, इसके ऊपर कुछ नहीं है। डायमेंशन बढ़ा सकते हो, c स्क्वायर है, c की पावर n है, जैसे रियल में होता है rn, rm, r2, r क्यूब, ऐसे इनके डायमेंशन है। मीन्स यू विल बी हैविंग लाइक 3 कोऑर्डिनेट्स, z1, z2, z3, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो रियल के 6 के इक्विवेलेंट होगा वो, कॉम्प्लेक्स का 3, बिकॉज 1 कॉम्प्लेक्स इज इक्विवेलेंट टू रियल का 2 डायमेंशन, राइट? एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आपको 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब उसके 2 रियल कोऑर्डिनेट्स हैं। तो अगर 3
ट्रिपल कोऑर्डिनेट होंगे, तीनों कॉम्प्लेक्स होंगे, सो दिस विल बी इन स्पेस एंड डायमेंशन विल बी इक्वलेंट टू R6. सो डायमेंशन बढ़ जाती है, बट इसके बियॉन्ड कोई नंबर्स नहीं है. मैम वो एक कोई हाइपर कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं होते? वो बेटा वैसे तो ये भी मतलब लेट्स नॉट गो इनटू डिबेट. ऐसे तो ये भी एक इमेजिनरी चीज है, दैट्स व्हाई इमेजिनरी आइडिया होता है. बट यू डू हैव द नोशन ऑफ आई वाई, फिर वो जे इंट्रोड्यूस कर देते हैं. जे मतलब इनफैक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जब सिग्नल वाली प्रॉब्लम्स करोगे वहां पे, इवन मैटलैब में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी जे इज यूज्ड फॉर आयोटा. So yeah, there can Okay. be like that, but let's not do the debate right now. Some other time I will discuss about it. Okay, we are done with time. I'm going to end this one and I'll let you know about the extra class. Happy Lodi, everyone. Bye.